हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन पंजेडियन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार मेंटेनेंस की। कनाडा में जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा होता है आफ्टर ऑफ कोर्स योर रेंटिंग इज योर कार। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो उसका क्या खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कनाडा में। सो लेट्स फाइंड आउट। आज मैं आया हूँ माइडस में बेसिक कार मेंटेनेंस दिखाने के लिए। बेसिक में सिर्फ टायर्स और ब्रेक्स चेक करवाने के लिए आया हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट कार और ब्रेक अगर आपको चेक करवानी है, जो बहुत ही बेसिक है यहाँ पे सर्विसेज में गिना जाता है, उसका क्या खर्चा है। लेट्स फाइंड आउट। गाड़ी मेरी दे दी है मैंने माइडस में रिपेयर होने के लिए, तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, बोल रहे हैं 20 मिनट। और मैंने मैनेजर से बात किया। आई होप एक्सपेंसेस को लेकर जो क्या खर्चा क्या मेंटेनेंस आता है उसके बारे में वो हमें एक्सप्लेन करेंगे। आई होप हमें अपना टाइम दे दे 5-10 मिनट, क्योंकि वो अभी जॉब पे है। सो लेट्स फाइंड आउट। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टिम हॉर्टन में कॉफ़ी पीने और कॉफ़ी लेके वापस चलेंगे माइडस। लेट्स गो। कॉफ़ी मैंने ले ली है। मैंने ली है डबल और मेरे फ्रेंड ने विवेक ने ली है। कौन सी ली है? वैनिला फ्लेवर कॉफ़ी ली है। हम वेट कर रहे हैं मैनेजर का, तब तक पी रहे हैं कॉफ़ी। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। Hey guys, thank you so much for I'm Sarah. Sarah is joining us. She's the manager at Midas, and she's going to explain us and basic services, like if you're a new international student, what kind of basic services you should look at, like with your car, like maintenance, what kind of maintenance you should always do for your cars. What is the basic cost? So Sarah, can you please explain us those? Yeah, thanks for having me. So as mentioned, I run this particular store next to the university. Yeah. And the number one thing I can really recommend and emphasize is always get your oil changes done. Oil changes. And done somewhere at a mechanic shop that you trust. Yeah. And that will do an inspection on your car. So it's not just about having that clean oil, which is absolutely critical to your engine. It's also knowing what's coming up due, so that you have an idea and the ability to budget accordingly. Yeah. So you know your brakes may be due in 6 months and how much that will cost, as opposed to being surprised with a large bill. So really somewhere that will inspect. So do you have like Midas offers like for a monthly package, or wherein like student can register their car and have like a maintenance going on after probably 6 months or 7 months? Do they get any like special discounts on that? Yeah, absolutely. So we always have a maintenance package that's out. That's what we call our oil change with the inspections. Yeah. And for your average vehicle, so like my Kia, for instance, it has regular oil, and that's going to run about $49.95, and we have our coupons out. On the high side, $59.95. $59.95 Now, for oil change. if you're running something that has synthetic oil or the then it's just the added cost of the engine oil. Okay. But the package itself, that value remains the same. Awesome. And so do you also guys like deal in like cars? If a student wants to buy a second-hand car, or do you also do that? Like Midas offers that service? I do pre-purchase inspections. Okay. So what I recommend is when you're looking at buying a vehicle, before you purchase it, do have it inspected first. Do have it inspected, yes. Yeah, that way you know what you're buying, and you know you may have spent $100 on an inspection. Yeah. But you know that car needs a head gasket and not to buy it. Yes, exactly. So that's what happened with me. I bought my car directly from the owner. Yes. And when I got it, suddenly started leaking. Like, so the engine oil was leaking. Then I had got it fixed. So then I came back. I think I came back here too to get it fixed. Yes. That was I think 3-4 months back. Yeah, And, absolutely. Yeah, so it's very critical. So if you're buying a car, make sure you get it inspected. Yes. And the best place to do it in Victoria, if you're living in Langford and studying in Royal Road University, is Midas by Colwood. Thank you. And she's always ready to help you and take care of your car. Thank you so much for your time. Thank you very much. And it's lovely talking to you. You as And well. one more thing, she's also a Royal Roads University graduate, recently graduated. Represents. So she represents Royal Road University, guys. Yes. Awesome. Thank you very much. Thank you so much.
सो बेसिक मेंटेनेंस चेकअप के अलावा जो मेन खर्चा गाड़ी का दोस्तों आता है वो आपका आता है, सबसे बड़ा जो खर्चा है वो होता है इंश्योरेंस का। सो मेरी गाड़ी का 2004 मॉडल मैंने होंडा सिविक ली थी, 2000 अराउंड 2 लाख किलोमीटर चली हुई। यहाँ पे गाड़ियों की लाइफ एक तो बहुत ज़्यादा है, और मैंने होंडा इसलिए ली क्योंकि होंडा की रीसेल वैल्यू कनाडा में सबसे ज़्यादा है। देन यू ऑल्सो हैव निसान एंड टोयोटा। सो ये 3 मॉडल मेरे हिसाब से जो मैंने देखे इनकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने होंडा लिया था। और मैंने न्यू गाड़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि तो मैं नहीं चाहता था कि आते ही मेरे पे कुछ फाइनेंशियल बर्डन हो जाए, क्योंकि गाड़ी लेने के लिए आपको चाहिए कैश नहीं तो आपको फाइनेंस पे लेनी पड़ती है और फिर आपको देना पड़ता है उस पर इंटरेस्ट। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बहुत लोग लेकिन वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे देख सकते हैं। बट माई एडवाइस इज़ टू ऑलवेज़ गो फॉर अ सेकेंड हैंड गुड कार। और अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो मेरी गाड़ी का जो साल का इंश्योरेंस है वो करीब है $1400। जी हाँ, $1400, 2004 मॉडल होंडा सिविक के। सो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत महंगा है। लाइसेंस लेने के बाद आपका जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाता है। तो जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था मैं ऑलमोस्ट $180 इंश्योरेंस के गाड़ी के दे रहा था, और लाइसेंस आने के बाद वही अभी मैं करीब $100 के आसपास, $95 to $100 मेरी जो अभी इंश्योरेंस की जो एक्सपेंस है वो जा रही है एवरी मंथ। तो मेरी गाड़ी है उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ कवर्ड है। जैसे जैसे आप अपना प्रोटेक्शन ऐड करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मुझे चाहिए थी अपनी गाड़ी के लिए, कि अगर मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो जो सामने वाले का जो डैमेज है उसको मैं पूरा कवर कर सकूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आपके पास थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एटलीस्ट $1 मिलियन की होनी चाहिए। सो टू मिनिमाइज योर कॉस्ट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट अ सेकेंड हैंड कार फर्स्ट, एंड देन जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, देन यू कैन स्विच टू अ बेटर कार। सो जैसे अभी मुझे ये कार लेके ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और मैं भी अभी क्योंकि मेरी अभी जॉब लग गई है तो मैं भी अभी फ्यूचर में मे बी इन कमिंग फ्यू मंथ्स आई विल चेंज माई कार, गो फॉर अ बेटर वन, बट स्टिल आई विल बाय अ सेकेंड हैंड कार। नई कार में नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू पे फॉर दी फाइनेंस। सो ओवरऑल कार मेंटेनेंस कनाडा में एक्सपेंसिव ही है। सो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर आप गाड़ी ओन करते हैं कनाडा में तो आपका साल का खर्चा आएगा, पकड़ लीजिए 1400 फॉर इंश्योरेंस, 300 से 400 मेंटेनेंस हो गए आपके, तो करीब 1700 वो हो गए। अगर आपने फाइनेंस में ली हैं तो फाइनेंस का और ऐड कर लीजिए, तो लगभग साल के आई वुड से $2500 से $3000 का खर्चा है कार मेंटेनेंस का कनाडा में। सो अपनी कैलकुलेशन कीजिए बराबर से, प्रॉपर से, गाड़ी लेने से पहले और उसके बाद ही डिसीजन लेना कार लेने का। एंड अगर आप कौन सा मॉडल लेना है तो मेरे हिसाब से होंडा, निसान, टोयोटा, ये 3 मॉडल की कार बेटर रहती है, काफ़ी सालों तक चलती है और मेंटेनेंस भी कम है, और इनकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।